آپ سب تشریف رکھیں. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آج کی پرستش کے وسیلہ سے کتنے لوگوں نے برکت پائی. میں چاہتی ہوں ایرن کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویا. ان کو نظر کرنا بنتی تھی جس طرح کہ آج انہوں نے پرستش کیا اور مجھے بہت برکت ملی. آئی فیلٹ سو انرجیٹک اور خداوند نے بہت برکت دے. ایرن کو بہت زیادہ سرفراز کرے اور میری طرف سے آپ سب کو جواب نہیں آیا. تھینک یو. جب آپ نے مجھے وشو سین کہا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب پیا پیدا ہوئی اور یہ مارچ میں 19 مارچ کو پیدا ہوئی اور نیکسٹ 2 ماہ بعد مئی میں مدرس ڈے آیا تو مجھے فرحان کی جو کہہ رہے ہیں پارو سیم ٹو یو تو وہ ہنسنے لگی. جی میں آپ کو مدرس ڈے اس لیے وش کرتی کیونکہ اب آپ ایک ماں ہیں. سو بڑا فرق ہے پتہ ہونے میں کہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ ایک واقعی ماں ہوں اور آپ کو احساس ہو کہ میں ایک ماں ہوں. سو میں چاہتی ہوں آج تمام ماؤں کو زوردار تالیوں سے آج کی عبادت میں خوش آمدید. جتنے لوگ اکثر میسیجز آتے ہیں اگر آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو یہ میسیج فارورڈ کریں. تو میں کہتی ہوں اگر آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو زوردار تالیاں. ہم ماں روئیں گے کہ میں نے 4 سال کیسے گزارے. بٹ اگر مجھے یہ تجربہ 4 سالوں میں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ماؤں کے لیے جنہوں نے ہمیں 30 سال تک 20 سال تک 25 سال تک پالا اور ہمیں اس قابل بنایا ہے وہ کس قدر عزت اور تکریم کے لائق ہے کہ نہیں. لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. دنیا میں غالباً اچھا ایک چیز اگر کوئی آپ سے کوئی خاطر کہنا ہے کہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو کلام ہے وہ لکھا نہیں ہونا چاہیے. کلام لکھا نہیں ہونا چاہیے. خدا کا روح ڈائریکٹ کلام کرے اور بندہ بولے تو یہ کلام ہے. پر ڈاکٹر لیاقت کے اثر ایسے لوگوں کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کلام اوپر سے آتا ہے وہ کلیسیا کے اوپر سے ہی جاتا ہے. بیکاز آپ نے اسٹڈی نہیں کی. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کون سی آیت کی تفسیر کیا کرنی ہے, کون سی آیت کے متعلق بائبل اسکالرس کیا کہتے ہیں. آپ نے اس آیت کی چھان بین ہی نہیں کی تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے. سو وہ کہتے ہیں جو کلام اوپر سے آتا ہے وہ کلیسیا کے اوپر سے ہی جاتا ہے. سو میں نے سرمن جو تیار کیا ہے آئی ہیڈ ویری شارٹ ٹائم, بڑے کم وقت میں کیا ہے. سو مجھے اس کی زیادہ تھوڑی ضرورت پڑے گی تو آپ بڑی نلائق ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اثر پیدا کرنے والی سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی قوت ہے تو وہ ماں ہے. دنیا میں خاندانوں پر زندگی پر اگر سب سے زیادہ محبت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس محبت کی ڈائریکشن نہیں انہیں دی جاتی. اور ماں محبت تو بہت کرتی ہے, محنت تو بہت کرتی ہے, محنت کرنی ہے یہ ماؤں کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. زیادہ تر مائیں نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. بے شک بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو باپ ہے وہی گھر کا لیڈر ہے, وہی گھر کا ہیڈ ہے, گھر کو بناتی ہے جو گھر کو سنوارتی ہے. اور بائبل مقدس ہمیں بڑی عظیم ماؤں کے بارے میں بتاتی ہے. اگر میں یہاں میں جتنی بھی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں جو مائیں ہیں اور وہ ہمارے پاس کچھ دادیاں بھی ہیں کچھ نانیاں بھی ہیں, تو جتنی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں جو بھی شادی شدہ نہیں ہیں لیکن ہر بیٹی ماں ضرور بنتی ہے. آپ آنے والے 10 سالوں میں 12 سالوں میں ایک ماں کے تجربے سے ضرور گزریں گے. سو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک عورت کس طرح ایک بہتر ماں بن سکتی ہے. سو بائبل مقدس میں ان تمام کرداروں میں سے جس کردار نے مجھے بہت ٹچ کیا, جس کردار نے مجھے بہت انسپائر کیا وہ حنا. جس کردار نے
जिस माँ ने मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया है, हम आज उसी माँ के किरदार से सीखेंगे कि हमारे अंदर, एक औरत के अंदर अच्छी माँ, बेहतर और अजीम माँ बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है। आज बाइबल मुकद्दस गुड लाइफ चर्च की माँ को एजुकेट करेगी कि उन्हें कैसी माँ बनना। तो यूं तस्वीर करें कि आमना भी नीचे बैठी है और हम सब मिलकर सीखेंगे कि हन्ना के किरदार से हमने माँ होने के बारे में कैसे सीखना है, हम एक अजीम माँ कैसे बन सकते हैं। हम सब अच्छी माँ बनना चाहते हैं और हम कामिल नहीं हैं, हमें सब में गलतियाँ भी हैं, खामियां भी हैं, हमें गुस्सा भी बड़ा आता है और सब तरह की कमियां हमें पाई जाती हैं। उसके बावजूद बाइबल मुकद्दस बताती है कि किस तरह एक औरत एक अजीम माँ बन सकती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हन्ना की जिंदगी कोई बहुत आसान नहीं थी कि वो एक अजीम माँ बन गई। हम सोचते हैं शायद उसकी जिंदगी बड़ी आसान थी। जिस मुआशरे में, जिस दौर में हन्ना रहती थी, उस दौर में एक से ज्यादा बीवियां रखना इजाजत थी, वो एक ठीक था, उसको सोचनी गुनाह नहीं माना जाता था। और हन्ना की एक सोतन थी जो उसे बहुत प्यार नहीं करती थी, जो उसको चिढ़ाती थी, उसको ताने देती थी, क्योंकि हन्ना के पास औलाद नहीं थी। अब हन्ना की एक सोतन है, सोतन के ऊपर ज्यादा जुल्म उसके लिए ये था कि अब उसके पास औलाद भी नहीं है। सो हन्ना के लिए अजीम माँ बनना इतना आसान काम नहीं था। सो मैं और आप, अगर हम में से कोई सोचे ये दौर बड़ा मुश्किल है, ये हालात बड़े मुश्किल हैं, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती क्योंकि चीजें बड़ी अब फर्क हो गई हैं, तो मैं आपको बता दूं, हन्ना से ज्यादा मुश्किलात का सामना हमने नहीं किया। हन्ना के लिए हालात बड़े फर्क थे। हन्ना कैसे दौर में भांज औरत थी, जिस दौर में भांज औरत को हकारत की नजर से देखा जाता था, क्योंकि लोग समझते थे अगर औलाद नहीं है तो खुदा इससे बड़ा नाराज है, अगर औलाद नहीं है तो खुदा इसको नापसंद करता है। लोग समझते थे इसकी औलाद नहीं है तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, इसका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, हन्ना ने एक अजीम माँ होने का सबूत दिया। बाइबल मुकद्दस ये साबित करती है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि हन्ना एक अजीम माँ थी। और हम आज हन्ना की जिंदगी से 5 असूल सीखेंगे। कितने असूल? वसीम भाई किधर है? वसीम भाई या फरहान, प्लीज आप एक काम करिएगा, व्हाइट बोर्ड लीजिएगा और जो 5 असूल होंगे उनको प्लीज बोर्ड पे जरूर लिखिएगा। जो लिख सकते हैं बोर्ड ले लें, व्हाइट बोर्ड मार्कर लें, उसको यहाँ पे रखें। जो 5 असूल हम आज सीखेंगे वो सामने जरूर लिखे जाएं ताकि वो बार बार सुनने पर हमें समझ आ जाए। अच्छा, अब अगर असूल की बात हम कर रहे हैं, अगर हम हन्ना की जिंदगी से 5 असूल सीखने वाले हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि वो हन्ना की जिंदगी के 5 असूल हैं, हम इसलिए वो 5 असूल आज सीखेंगे क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस में से एक किरदार के 5 असूल। खुदा का जिंदा पाक कलाम इन 5 असूलों को हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। खुदा के कलाम में पाक रूह ने ये इसलिए ये दर्ज करवाए हैं, पाक रूह ने हन्ना की कहानी इसलिए तफसीलन लिखी है ताकि मैं और आप जितनी ख़वातीन माएँ बने उनके लिए एक बेहतर मसल कायम हो सके, वो जान सके कि मैं एक अजीम माँ कैसे बन सकती हूँ। मैंने हन्ना की जब लाइफ पर स्टडी किया इस सरमन के लिए तो मैंने बहुत बरकत पाई और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब भी बरकत पाएंगे। और भाई सोच रहे होंगे, जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, आज का कलाम माओ पर है, हन्ना पर है, तो हम सो भी सकते हैं, कुछ और भी सोच सकते हैं, कोई कारोबार का प्लान भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज का कलाम सिर्फ माँ के लिए नहीं है, आज का कलाम बाप के लिए भी है। आज का कलाम हर उस ईमानदार के लिए है जो खुदा को अपना बेस्ट देना चाहता है। आज का कलाम हर उस ईमानदार के लिए है जो खुदा के लिए कुछ करना चाहता है। आज का कलाम हर उस बेटी, उस बेटे, उस नौजवान, उस बुजुर्ग के लिए है जो खुदा को अपना आप देना चाहता है। सो हन्ना की जिंदगी से 5 असूल हम सीखेंगे। और सबसे पहला असूल जो हमें हन्ना की जिंदगी में मिलता है, हन्ना भांज थी, दुखी थी, तकलीफ में थी, परेशानी में थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे पहली तरजीह खुदा थी। हन्ना की जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? खुदा था। वो हमें अपने दुख का इजहार करते हुए भी किसके पास नजर आती है? खुदा के पास। वो अपनी परेशानियों का इजहार भी किसके साथ करती है? खुदा के साथ करती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहला दर्जा, पहली तरजीह खुदा को दे दी है। उसने अपनी पहली तरजीह किसको दे दी है?
खुदा को वसीम भाई पहला असूल लिखें कि आपकी जिंदगी का जो पहला दर्जा है या आपकी जो पहली तरजीह है वो खुदा हो। एक माँ की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? खुदा होनी चाहिए। अब उसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अगर माँ सुबह उठकर दुआ नहीं करती तो बच्चा ये बात जान जाता है कि दुआ करना इतना जरूरी काम नहीं। अगर माँ चर्च जाने से पहले ये सोचती आज मेरा दिल नहीं कर रहा चर्च जाने को, तो बच्चा क्या समझेगा कि कभी कभी दिल ना भी करे तो चर्च नहीं जा सकते, हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर माँ की जिंदगी में खुदा ही पहली तरजीह है तो ना चाहते हुए भी उसके बच्चों की जिंदगी में भी पहली तरजीह कौन होगा? खुदा। जब घर में सैलरी आती है तो माँ अपने शोहर से कहती है, और बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने जावेद भाई के बच्चों में ये गवाही देखी है, बच्चे सुन रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं कि बाप सैलरी लाया और माँ कहती है इस सैलरी में से पहले हमने 10वां हिस्सा अदा करना है। तो बच्चे जान गए कि हमारे घर के रुपए पैसे में भी पहली तरजीह किसकी है? खुदा की है। सुबह उठते ही मेरी माँ क्या करती है? दुआ करती है, बाइबल पढ़ती। सो मेरी जिंदगी में भी पहली तरजीह कौन हो? खुदा ही हो। दूसरा असूल जो हमें हन्ना की जिंदगी में मिलता है और ये बड़ा ही खूबसूरत असूल है, और ये असूल मैं पढ़ाना चाहते हैं सिर्फ माँ का नहीं पूरी कलीसिया का हो कि हम सब दुआ गो बन जाए। हम सब क्या हो जाए? दुआ गो बन जाए। 2022 में गुड लाइफ चर्च का जो गोल है, जो टारगेट है, जो मकसद है, वो यही है कि हमारी पूरी कलीसिया मर्दे दुआ बन जाए। हालेलुया। तो आप सब जरूर दुआ या जिंदगी को स्टेबल करें, अपनी जिंदगी में दुआ को आदत बनाएं। सो हन्ना एक दुआ गो औरत, उसकी जिंदगी का दूसरा असूल क्या था कि वो एक दुआ गो माँ थी, या दुआ गो खातून कहने या दुआ गो औरत कहने। मेरा एक सवाल है, हम अपने बच्चों की परवरिश कब करते हैं? हम अपने बच्चों की परवरिश कब करते हैं? जब वो टीन एज में आते हैं, 16-17 साल के होते हैं, तब तरबियत करना शुरू करते हैं। जब हमारे बच्चे 10 साल के होते हैं तब, कोई कहेगा नहीं कि उससे भी पीछे जब 3-4 साल के होते हैं, कोई कहेगा नहीं जब बच्चा पैदा ही होता है हमें तब ही उसकी तरबियत करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हन्ना की जिंदगी में हमें यह असूल मिलता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत तब नहीं करनी जब वो 16 साल के हों, तब नहीं करनी जब वो 10 साल के हों, तब नहीं करनी जब वो पैदा हों, बल्कि हमारी तरबियत का पहला कदम ही होता है जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं। हमारी अपने बच्चों के लिए तरबियत का आगाज कब होता है? जब हम अपने बच्चों के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं? दुआ करना शुरू कर देते हैं। और अब सवाल है कि बच्चों के लिए दुआ कब करनी चाहिए? जब वो जवान होने लगे, जब वो छोटे हों, जब स्कूल जाने लगे, या जब अभी पैदा होने वाले हों? तो तब नहीं जब वो पैदा होने वाले हों, तब नहीं जब आप कंसीव कर लें, जब आप हामला हो जाए तब नहीं दुआ करनी। अभी जब आप और आपका शौहर प्लान करें कि हम शादी करेंगे और हमारे बच्चे होंगे, आप दुआ में ठहर जाए, वो ही आपकी तरबियत का आगाज। अन्ना नहीं जानती थी खुदा मुझे औलाद देगा या नहीं, अन्ना को नहीं पता था कि पता नहीं खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा या नहीं। वो तो ये जानती थी कि मैं भांज हूँ, और भांज होने के बावजूद अन्ना की दुआ क्या है? खुदावन तू मुझे औलाद दे, और औलाद कैसी दे? जो तेरी खिदमत करे। हमें आप बाइबल मुकद्दस में से सारे वाज़ह किरदारों को उठा के देख लें, उन सब में ज्यादातर खवातीन भांज थी। ज्यादातर खवातीन क्या थी? भांज थी। और जब उन्होंने खुदा से दुआ की और जब उन्होंने उनकी दुआओं का जवाब दिया तो उनसे सूरमा पैदा हुए, उनसे लीडर्स पैदा हुए, उनसे नबी पैदा हुए, उनसे दुनिया के बेहतरीन काजी पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने खुदा से मांग कर उनको दिया। आप सारा को देखें, 90 साल की है और भांज है, औलाद नहीं है। जब खुदा को मिलती है, खुदा उसको बेटा देता है इसहाक, और जब उससे इसहाक पैदा होता है तो इसहाक दुनिया की तारीख को बदल देता है। इसहाक पूरी दुनिया के लिए बरकत लेकर आता है। उस वादे का आगाज इसहाक से होता है, जिस वादे का खुदा ने इब्राहिम से इजहार किया, और वो वादा पूरी दुनिया की निजात का आगाज था, और इसहाक ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उसके बाद रिबका खुदा से दुआ करती है कि खुदा मुझे औलाद दे, मेरे पास औलाद दे। जब खुदा से औलाद देता है तो याकूब जैसा वादे का फर्जंद इसराइल उससे पैदा होता है। फिर हमारे पास रेचल है।
याकूब की बीवी राहल खुदा से दुआ करती है, खुदा अपने शोहर से कहती है मुझे भी औलाद दे वरना मैं मर जाऊंगी। याकूब कहता है मैं कोई खुदा हूँ जो मैं तुझे औलाद दूँ? ये काम तो खुदा का है। वो खुदा से दुआ करती है, खुदा से बेटा देता था। जानते उसकी कोख से, उसके हमल से कौन पैदा होता है? यूसुफ पैदा होता है। खुदा का बेहतरीन फरमाबरदार शख्स बाइबल मुकद्दस में, ऐसा शख्स जिसकी कोई खामी बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुआओं के जवाब में मेरी औलाद कैसी होती है, तो यूसुफ की जिंदगी को यूसुफ की जिंदगी का मुताला करें। रूत बांझ थी, औलाद नहीं थी, खुदा के साथ जैसी वफादारी का अहद करती है, खुदा उसे बरकत देता है, उसे ओबेद पैदा होता है और उसी की नस्ल से रूत को ये शर्फ हासिल होता है कि वो दाऊद जैसे अजीम बादशाह की परदादी होती है। और ये तब होता है जब हम खुदा से दुआ करते हैं अपनी औलाद के पैदा होने से पहले। इससे पहले कि आप कंसीव करें, इससे पहले कि आप माँ बने, आप खुदा से अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ करें। आप खुदा से अपने फरमाबरदार बच्चों के लिए दुआ करें। और हन्ना ने ऐसा किया। हन्ना ने जब खुदा के हजूर दुआ की तो उसने खुदा से ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा उसने कहा मुझे ऐसा बेटा दे जिसको मैं तेरी खिदमत के लिए दे दूं। अब आते हैं हन्ना की तरफ। जब हन्ना को खुदा ने बरकत दी तो उससे कौन पैदा हुआ? शमूएल पैदा। और शमूएल बनी इस्राएल का आखिरी काजी और बेहतरीन रहनुमा, जिसके लिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो मर्दे दुआ। बाइबल मुकद्दस में दो ही मर्दे दुआ थे, एक मूसा और एक शमूएल। और ये हन्ना से पैदा। शमूएल इसलिए मर्दे दुआ था क्योंकि उसकी माँ दुआ गो है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपसे पैदा होने वाले बच्चे दुआ गो, आपकी बेटियां दुआ गो, आपके बेटे दुआ गो, तो आज आप भी अपनी जिंदगी में हन्ना की तरह दुआ करना शुरू करें। अपने अंदर इस आदत को, इस असूल को अपनाएं। आप ना सिर्फ खुदा को पहली तरजीह दें, बल्कि आप अपनी दुआओं में भी खुदा के हजूर अपनी औलाद को रखें, खुदा से दुआ करें। आप सोचें, अगर दुआ से मांगे हुए बच्चे और जब वो बच्चे मिल जाते हैं, वो जब खुदा को प्रेजेंट किए जाते हैं, वापस खुदा को दिए जाते हैं, तो वो सूरमा बनते हैं, बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं, वो बड़े बड़े नबी बने, बड़े बड़े वो रहनुमा बने। तो फिर आज भांज औरतों को सजदों में झुक जाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा और नबी भेजना चाहता है, खुदा और लीडर्स भेजना चाहता है, खुदा और ऐसे रहनुमा भेजना चाहते हैं जो मसीहियत के काम को मुकम्मल कर सके। आज हम औरतों को दुआओं में झुकने की जरूरत है। और आप तसव्वुर करें, अगर इसहाक ना होता तो दुनिया की शक्ल कैसी होती? अगर यूसुफ ना होता तो बनी इस्राइल का वजूद कैसा होता? अगर दाऊद नबी ना होता तो क्या होता? आपको पता है, एलिशबा भी भांज थी, उसने खुदा से दुआ की कि मुझे बेटा दे। उससे कौन पैदा हुआ? यूहन्ना अस्तबागी, जो यीशु मसीह का फोररनर था, यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला। तो यीशु ने उसके लिए कहा, यूहन्ना अस्तबागी के लिए, कि आज तक जितने भी औरतों से पैदा हुए वो यूहन्ना से बड़े नहीं। आप सोचें कि यूहन्ना किस कदर ऊंचे रुतबे का नबी हो, किस कदर ऊंचे रुतबे का होगा कि यीशु कहते हैं कि आज तक जितनी औरतों से पैदा हुए वो यूहन्ना से बड़े नहीं। आप सोचिए, अगर यूहन्ना ना होता तो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का वजूद कैसा? ये लीडर्स, ये रहनुमा, ये सूरमा, ये नबी इसलिए पैदा हुए कि माओ ने दुआ की, माओ ने दुआ से इनको मांगा और खुदा से कहा कि मुझे बेटा दे। जॉन हाकी का एक दफा मैं कलाम सुन रही थी, बड़े अजीम मालूम है, टीवी पर लगा हुआ था, वो अपने दुआ में ही वो कलाम सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भटका हुआ इंसान था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक फिर आके आ रहा था, बड़ा एंजॉय करके आ रहा था, और मैंने दरवाजे पर आते ही अपने जूते उतारे कि मेरी माँ जूते की आवाज़ सुन के जान ना जाए कि मैं रात के इतनी लेट घर आया। और वो कहते हैं कि मैं नंगे पाँव अपने जूते हाथ में पकड़ अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि मैंने अपनी माँ की दुआ की आवाज़ सुनी। और मेरी माँ कई सालों से दुआ कर रही थी, मुझे चर्च भी कहती थी कि जाओ, और मैं नहीं मानता था, मैंने कभी नहीं इस बात को अहमियत दी। और जब मैंने अपनी माँ की दुआ सुनी तो मेरी माँ खुदा से ये दुआ कर रही थी, क्या खुदा, अगर मेरा बेटा जॉन मेरे साथ आसमान पर नहीं जाएगा तो मेरा इतना दुआगो होने का क्या फायदा? खुदा, अगर मेरा बेटा मेरे साथ तेरी आसमान की बादशाही में दाखिल ना हुआ तो मेरी इतनी खिदमत का क्या फायदा? तू मेरे बेटे को मेरे साथ उस
आसमान की बादशाही के लिए तैयार है। जॉन है कि कहते हैं मैं परेशान हो गया, ये आसमान की बादशाही क्या चीज है कि मेरी माँ रो रो कर खुदा से मेरे लिए दरख्वास्त कर रही है। कहते वो दिन है कि मेरी जिंदगी बदल गई और मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआ की वजह से। आज मैं जब जॉन है कि बना तो उसके पीछे मेरी माँ की वो दुआ थी कि वो मुझे जमीन पर, इस गुनाह भरी जमीन पर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आज कितनी माएँ हैं जो अपने आज कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, दिन रात इस बात के लिए कि खुदा जब तू मुझे औलाद देगा तो वो तेरी फरमा बता। हन्ना ना सिर्फ अपनी जिंदगी में पहली तरजीह खुदा को देती थी, हन्ना दुआ को रखती थी। और तीसरा उसकी जिंदगी का असूल ये था कि वो अपनी जिंदगी में एक अजीम मकसद भी रखती थी। वो सिर्फ एक तरजीह देने वाली नहीं थी, वो सिर्फ दुआ को नहीं थी, बल्कि वो अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन, एक अजीम मकसद भी रखती थी। अब हम हन्ना की घर जाके पहला बाप सारा पढ़ेगा, हन्ना की दुआ सुनेगा। खुदावन अगर तू अपनी लौंडी पर रहम कर, अगर तू अपनी बंदी पर करम कर, अगर तू मुझे फरजंदे नरीना बख्शे तो खुदावन मैं उसे तुझे दे दूंगी, उसके सर पर कभी उसरा नहीं फिरेगा। और आप अगर उसरे की हिस्ट्री चाहें तो गिनती 6 बार पढ़ेगा और उसरा उसके सर पर नहीं फिरता था जिसको मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए डेडिकेट कर दिया जाता था। अब हन्ना ये नहीं कह रही कि खुदा मुझे बेटा दे ताकि मेरा बुढ़ापे में सहारा हो, ये नहीं कह रही खुदा मुझे बेटा दे ताकि मैं अपनी सोतन को दिखाऊं कि देख मेरे पास भी औलाद है। वो कहती खुदावन मुझे एक रात बाज बेटा दे, मुझे ऐसा बेटा दे जो तेरा फादर बने, मुझे एक पाक बेटा दे, मुझे एक काजी दे जो इसराइल का रहनुमा बने, जो मेरा नहीं वो तेरी खिदमत करने वाला बेटा। आज हम जो खुदा से दुआ करते हैं, देखिए औलाद हमें खुदा की तरफ से मिलती है। बाइबल मुकद्दस ये वाज़ेह करती है औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है, मिरास। पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है, ये खुदावंद की तरफ से मिलती है। और ये जो हमारी गोद में खेलने वाले बच्चे हैं ना, ये खुदा के हैं। किसके हैं? खुदा के। इनका मालिक कौन है? खुदा है। तो अगर खुदा मालिक है तो फिर हम कौन है? हम मुख्तार हैं। मुख्तार से मुराद हम खुदा के मुख्तार हैं और ये औलाद खुदा ने हमें अमानत के तौर पर दी है ताकि हम इनको खुदा की राह पर लेकर जाएं। और अमानत में ख़यानत तो माएँ तभी कर देती हैं जब वो अपने बच्चों को खुदा से मुतारफ नहीं कराती, जब अपने बच्चों को बताती ही नहीं कि खुदा कौन है, जब अपने बच्चों को सिखाती ही नहीं कि खुदा किस कदर रहीम है, खुदा का उसकी जिंदगी में क्या मंसूबा है। और तभी मैंने कहा अमानत में ख़यानत हो जाती है, हम तभी अनफेयर मदर्स बन जाती हैं, हम तभी बेहतर माएँ नहीं बनती जब हम उनको खुदा से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। आज माएँ दुआएं करती हैं खुदा मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा बेहतर इंसान बन जाए, मेरा बच्चा अच्छा बिजनेसमैन बने, मेरा बच्चा डॉक्टर्स बन जाए, मेरे बच्चे इंजीनियर बन जाए। तो मैं समझती हूँ ये दुआएं करना गलत नहीं है, अच्छी बात है आपके बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, अच्छे कारोबार करें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बदकिस्मती उन बच्चों की ये है अगर उनकी माँ सिर्फ यही दुआ करे कि उनके बच्चे डॉक्टर्स बने, बदकिस्मती उन बच्चों की है कि उनकी माँ सिर्फ उनके लिए अच्छे रुपए पैसे की दुआ करे। क्यों? क्योंकि माँ की दुआ सिर्फ बच्चों के डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं होनी चाहिए। माँ की दुआ इस बात के लिए होनी चाहिए कि खुदावन तू मुझे औलाद दे ताकि उसे मैं तुझे वैसा ही सौंप सकूं, ताकि मैं उसे तुझे वैसा ही दे सकूं, मैं उसे तेरे हवाले कर। हन्ना ने ऐसा किया, हन्ना ने कहा खुदावन तू मुझे फरजंदे नरीना बख्श, तो मैं क्या करूँगी? मैं उसे तुझे डेडिकेट करूँगी, वो तेरा होगा, वो किसी और का, वो मेरा भी नहीं होगा। खुदावन वो किसका होगा? वो तेरा बेटा होगा। आज प्रॉब्लम क्या है मसीह खानदानों में? घर में जो सबसे नकम्मा बच्चा होता है उसको पादरी बना दिया जाता है, और ये हकीकत है। आप माशरे में निकल कर देखें, और हम मसीहियों ने ना एक आयत को भी बड़ा सीरियसली लिया है कि बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया के निकम्मों को चुन लिया कि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे, अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। तो हम लोग सोचते हैं अब हमारे जो बच्चे निकम्मे हैं खुदा ने उनको इसलिए निकम्मे बनाया ताकि वो खिदमत करें। ऐसा नहीं है, खुदा बेस्ट चाहता है, खुदा बेहतर चाहता है। तो फिर माँ का, वालिदैन का, माँ बाप का फैसला क्या होना चाहिए कि आपका बेटा पूरे पाकिस्तान में से गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा तबला नवाज है और दुनिया उसको उस्ताद मानती है, और आप उसको स्पीड से उठाते हैं और सलीब के पास ला खड़ा करते हैं कि तू खिदमत कर।
तू क्या कर, क्यों खिदमत कर, क्योंकि तू मेरा बेस्ट है। आज माए अपने बच्चों को जो बेस्ट होते हैं उनको डॉक्टर बनाने की तरफ रागब करते हैं। आपको लगता है आपके बच्चे टैलेंटेड हैं तो उनको खुदा के लिए तैयार करें। आपको लगता है मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं तो उनको खुदा के लिए तैयार करें, क्योंकि आप मुख्तार हैं, आप मालिक नहीं, आप मालिक नहीं हैं, आप मुख्तार हैं। अपने बच्चों के साथ अच्छे मुख्तार होने का हक अदा करें, उनको खुदा के बारे में बताएं, उनको खुदा से मिलाएं, ताकि आप अपनी जिंदगी से मकसद को पूरा करें जिसके लिए खुदा ने आपको ये औलाद दी है। यूहन्ना रसूल कहता है मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। लोग मुझे कहें आपका बेटा बहुत राज़बाज़ है, लोग मुझे कहें आपका बेटा खुदा खौफ है, लोग मुझे कहें आपका बेटा बहुत इज्जत करने वाला है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। मैं अक्सर टिया की स्टडी के लिए बहुत सर्च करती हूँ, इसको मैं बेहतर क्या टीच करूँ, कैसे। मैंने एक मुफक्कर की बातें सुनी, उसने कहा आप अपने बच्चों को डांटा ना करें, मारे ना करें, उनकी सीखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जब आप अपने बच्चों पर शाउट करते हैं तो आपके बच्चे कम इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ टिया किसी बात पे बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, मैंने उसे बहुत डांटा, बल्कि 2 लगाई भी, और फरहान भी पास बैठे थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा कि आप नहीं मारो। मैंने कहा फरहान मैं नहीं चाहती टिया साइंसदान बने, मैं नहीं चाहती ये इंजीनियर बने, मैं नहीं चाहती ये डॉक्टर बने, मैं चाहती हूँ ये खुदा को, मैं चाहती हूँ ये एक खुदा को बच्ची बने, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती दुनिया में बड़ी बड़ी डिग्री से सिर्फ इतना सा काम हो कि इसका पर्रे की किताब में नाम लिखा हो, ये मेरी अचीवमेंट है। यही एक माँ की अचीवमेंट है कि वो अपने बच्चों को यीशु के लिए तैयार करे। इससे बड़ी कोई माँ अजीम हो नहीं सकती कि वो अपने बच्चों को यीशु से मिला दे। आमीन। तो हन्ना ने ऐसा किया, हन्ना ने कहा खुदा, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि लाजमी है कि आप हर घर में खादम होना चाहिए या आपका हर बच्चा खादम बने, ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर घर में से एक खादम होना जरूरी है। जरूरी क्या है? जरूरी है कि हर खानदान का हर बच्चा यीशु का पैरोकार हो, हर खानदान का हर बच्चा यीशु का पैरोकार हो। और ये तभी मुमकिन है जब माएं इन पर काम करें, क्योंकि हन्ना ने अपने बेटे पर काम किया। अल्काना का कोई जिक्र नहीं कि अल्काना उसके कानों में जाके आयतें पढ़ता था, अल्काना उसकी तरबियत करता था। जितने अरसे तक सामुएल की तरबियत हुई, कौन उसके पास था? हन्ना उसके पास थी। क्यों? ये आज भी हमारा कानून माँ को क्यों बच्चे सौंप देता है? आप जानते हैं, क्योंकि कानून जानता है कि माँ से बेहतर तरबियत और कोई कर नहीं सकता। माँ की वक्त कानून जानता है, गैर कौमें जानती है। अफसोस की बात है मसीही माशरा नहीं जानता कि माँ क्या कर सकती है, माँ अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन और क्या साथ दे सकती है, माँ अपने बच्चों की जिंदगी में क्या बेहतरी ला सकती है। हन्ना ने खुदा से दुआ की, खुदा मुझे बेटा दे, मैं उसे तेरी राह पर दे दूंगी, मैं उसे तुझे डेडिकेट कर दूंगी, वो तेरा होगा, वो मेरा नहीं होगा। आज जब हम खुदा से दुआएं करते हैं, हम कितनी शिद्दत से अपने बच्चों को खुदा को डेडिकेट करते हैं, कितनी शिद्दत से खुदा से कहते हैं खुदा ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये तेरे हैं। आज हम कितनी शिद्दत से इस बात का इकरार करते हैं कि ये मेरे मकसद पूरे नहीं करेंगे, खुदा ये अपनी जिंदगी से तेरे मकसद पूरे करेंगे। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हम अपने बच्चों को जबरदस्ती खुदा की खिदमत नहीं करवा सकते। मैं सारे पेरेंट्स को ये बात बताऊं, हम ये जो बचपन में ऐलान कर देते ना मेरा बच्चा पादरी बनेगा, दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को आजाद मर्जी पैदा किया है। हम अपने मकासद अपने बच्चों पर थोप नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम दिल में ख्वाहिश रख सकते हैं, हम कह सकते हैं खुदा मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे तेरे खादम बने, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तेरे पैरोकार बने। और ये चीज़ हम दुआ में खुदा के हुजूर रख सकते हैं। हम अब अपना मकसद अपने बच्चों पर तो नहीं थोप सकते, हम अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश रख सकते हैं। तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए मकसद रख सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें खुदा मेरे बच्चे रास्तबाज हों, और अपने लिए ठान लें कि मैं रास्तबाज हूँ।
जब आप रास्तबाज होंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली रास्तबाज होंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है सादक की औलाद जोरावर हो। जब आप खुदा के साथ डेडिकेटेड है तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड हो जाएंगे। किसी मुफक्कर ने कहा आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? जो आपको करते देखते हैं। उन्होंने जो आपको करते देखना उन्होंने वही करना। बड़े बड़े आदमी यही कहते हैं मैंने अपनी माँ को दुआ, मैंने अपनी अम्मी को सुबह 4 बजे उठ के दुआ करते लाउडली बाइबल पढ़ते सुना है। वो बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई अलिफ बे नहीं आती। उन्होंने ऐसा बाइबल का रट्टा लगाया था कि सुबह 4 बजे बल्ब के बिल्कुल उनकी आई साइड भी वीक थी और वो इतना लाउडली पढ़ा करती थी कि हम सबकी नींद उड़ जाती थी और हमें बड़ा गुस्सा आता था। एंड ट्रस्ट मी, उनके उस सुबह 4 बजे उठकर बाइबल ऊंची आवाज में पढ़ने से आज बड़े वाक़यात मुझे जुबानी याद, आज बड़ी आयत मुझे पता है कि ये यीशु ने कही है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ पढ़ती है। आज बहुत से लोग कहते होंगे हमने अपनी माँ को दुआ करते देखा है, हमने अपनी माँ को बाइबल पढ़ते देखा। ऐसा है, करते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं हमारे बच्चे वही करते हैं। हम खुदा से मोहब्बत के इजहार में कमी दिखाएंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। हम खुदा के लिए वफादारी करेंगे, हमारे बच्चे भी खुदा के साथ वफादारी करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं खातमीन के ताल्लुक से। आई वॉज सो लिटिल। मेरी बड़ी सिस्टर बैठी है मुल्तान में। अगर मैं गैप लगाऊं, हमें कोई 27 से 28 साल तो हो गए लाहौर शिफ्ट हुए। हम जब मुल्तान में थे मैं स्कूल नहीं जाती थी। स्कूल जो बच्चा नहीं जाता ज्यादा से ज्यादा 4 साल का होता है, 4.5 साल का, 5 साल का कर ले। लेकिन मुझे एक वाकया याद है। हमारे घर एक आदम आया और उसने क्या किया, वो आकर कलाम सुनाने लगा और मैं बहुत शरारती थी। टिया बिल्कुल मेरी कॉपी है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जितनी भी शरारती है इसलिए क्योंकि मैं उसकी मदर, उसके अंदर वो जिबलतें हैं। अब मैं बहुत शरारती थी, मैं उस पातली की नकलें उतारना शुरू कर। मेरी अम्मी ने 2 दिन मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा नहीं करो नहीं करो। मैंने कहा सुना था, मैं तो किसी और प्रैक्टिस की मालिक थी। जब पादरी साहब उठ के गए तो जब अम्मी दरवाजा बंद करने वापसी तो उनके हाथ में स्लिपर था। और जितनी उस दिन मेरी पिटाई हुई और इसी बात पे कि आपको नहीं पता खादम खुदा की आंख की पुतली है, आपकी जुर्रत कैसे है कि आप उसकी नकल उतारें। दैट वाज द मोमेंट मेरी माँ ने मुझे खादम की इज्जत करना सिखाया। वो लम्हा था जब मेरी माँ ने खादम के आगे बदतमीजी ना करना सिखाया। मेरी अम्मी अब शुरू हो गई। आपको पता है मूसा पर बनी इसराइल बुड़बुड़ाई, खुदा ने बियाबान में उनको मार दिया था। मूसा और हारून पर इसराइलियों ने, बनी गोरा के लोगों ने उंगली उठाई कि सिर्फ यही खुदा की चीज है। खुदा ने उनको जमीन में जिंदा गाड़ दिया था। ऐसे जमीन पूरे दिनों खानदान बीच में जमीन वापस कर दी। पढ़ के देखिएगा बाइबल, खुरूज के आखिरी अब्वाब पढ़िएगा। उन्होंने खातमीन पर उंगली उठाई। अब मैं तो डर गई, खादमों पे नहीं उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि मेरी माँ खादम की इज्जत। अगर आज आप खादम की इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे भी खादम की इज्जत। जब आप बैठकर अपने बच्चों के साथ मनफी गुफ्तगू करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। सो मैंने कहा जो आप करते हैं आपके बच्चे भी वही करते हैं। और जब आपके बच्चे खातमीन की इज्जत करेंगे तो एक दिन वो खादम भी बन जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद चौथा असूल जो हमें हन्ना की जिंदगी में मिलता है और वो ये है कि वो अपनी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाज औरत थी। परसिस्टेंसी थी उसके किरदार में। वो मुस्तकिल मिजाज की बात कैसे? औलाद नहीं है, खुदा के रसूल चुकी है, खुदा ने बरकत दे दी है, कंसीव कर लिया है, खुदा की शुक्रगुजारी की है। बेटा हो गया है, उसको पाला है, बड़ा किया है, खुदा के पास ले आया। उस औरत ने कहीं भी दुख में भी खुदा के साथ है, सुख में भी खुदा के साथ है, वफादारी में भी खुदा के साथ है। आज हम में से जितने लोग परेशानियों के साथ दो चार हैं, जितने भी लोग तारीकी में, जिनको लगता है बड़े परेशान हैं, जितने भी लोगों को लगता है खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, तो आज हमें हन्ना से सीखना है कि हन्ना के अंदर मुस्तकिल मिजाजी, हमें भी अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी लानी। हमें हर हाल में खुदा के साथ जुड़े रहना है ताकि वो हन्ना की तरह हमारी जिंदगी में भी मौजूद करे। हन्ना की जिंदगी में पहली तरजीह किसकी थी? खुदा की थी। दूसरा असूल क्या था? वो एक दुआ गो खातून थी। तीसरा उसका असूल क्या था? कि उसकी जिंदगी में एक मकसद था, उसकी जिंदगी में अजीम मकसद था। और चौथी उसकी जो खासियत थी, उसकी जो उसका असूल था वो ये था कि वो मुस्तकिल मिजाज थी।
नए साल पे डैडी ने कलाम सुनाया, खुदा के साथ वफादार हो जाए, ये साल खुदा को देने। मैंने बड़ी बहनों के मुझे सुना, अब हमने खुदा को पहली तरजीह देनी, हमने कलाम सुन लिया और 3-4 माह में वो बहनें नजर ही नहीं आती। तो मेरा सवाल सिर्फ उन बहनों से ये है कि वो कैसी बच्चों की परवरिश करें। क्या वो अपने बच्चों में मुस्तकिल मिजाजी ला पाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को उस तरह का बना पाएंगे जैसा खुदा चाहता है? क्योंकि जब उनकी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो उनके बच्चों में वो सिर्फ कभी भी नहीं जाएंगे। अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखें, खुदा के साथ अच्छे बुरे, सुबह शाम दिन रात तूफानों में भी खुदा के साथ वफादार रहना सीखें। पता नहीं क्यों मैं बार बार भाइयों की तरफ देख रही हूँ, आज बहनों के लिए ज्यादा मैसेज है। हमें हर हाल में, हम माए हैं तो हमें खुदा के साथ मुस्तकिल मिजाज होना जरूरी है। अगर अब कोई बहनें हैं जो यहाँ पर बैठी हैं, मुझे पता है उनसे ज्यादा मुझे फिक्र है कि खुदा उन्हें बरकत दे। अगर उन्हें लगता है कि मेरे पास औलाद नहीं, आज का कलाम सुन के मैं बड़ी दिलज़ारी महसूस कर रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, तो खुदा का पैगाम आपके लिए आज ये है कि मजबूत हो और सब्र करके खुदा की आस रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं। हालेलुया। आप मजबूत हो जाएं और आस रखें, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने हन्ना को शर्मिंदा नहीं किया तो वो आपको भी शर्मिंदा नहीं करेगा। वो नहीं करेगा अपने ऊपर आस रखने वाले लोगों को। हन्ना इसलिए अजीम माँ थी क्योंकि उसकी तरजीह खुदा थी। हन्ना इसलिए अजीम माँ बनी क्योंकि वो एक दुआ गो माँ थी। हन्ना इसलिए अजीम माँ बनी कि उसकी जिंदगी में एक बेहतर मकसद था। हन्ना इसलिए अजीम माँ बनी क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज थी। खुदा की मोहब्बत कभी उससे छीनी नहीं जा सकती। वो उनके समूह के बाद उसकी और भी औलाद हुई, उसके बावजूद वो खुदा के साथ वफादार थे। आखिरी सिर्फ हन्ना की आखिरी असूल जो हम आज हन्ना से सीखे वो ये है, कायल करने की खासियत थी उसके अंदर। कायल करने की खासियत थी, परसुएशन की स्पिरिट थी उसके अंदर। कैसे? मैंने कहा हम अपने बच्चों को फोर्स तो कर नहीं सकते कि वो खुदा के खादम बने, नहीं कर सकते ना, ये उनकी अपनी स्पिरिट, अपनी आज़ादी है। लेकिन आप अपने बच्चों को कायल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कायल कर सकते हैं। हन्ना ने किया। हन्ना का जब समूल पैदा हुआ तो अल्काना से कहती कि आप कुर्बानी करने जाएं, मैं तो समूल के पास हूँ। कब तक उसके पास रहूंगी? जब तक उसका दूध ना छुड़ा जाए। तारीख बताती है उस वक्त जो दूध छुड़ाया जाता था वो 6 से 7 साल के में 8 साल तक भी माएँ दूध पिलाती थी। और आज आप बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का कभी वो आर्टिकल पढ़िएगा या उन पर रिसर्च करिएगा, वो कहते हैं एक रिसर्च के मुताबिक एक माँ अगर अपनी बच्चे की तरबियत बेहतर करना चाहती है तो उसके पास पहले 7 साल होते हैं। इन पहले 7 सालों में, इन पहले 6 से 7 सालों में माँ जो अपने बच्चे को सिखा देगी वो उम्र भर उसकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। और हन्ना ने ऐसा किया। हन्ना ने कहा ये मेरे पास रहेगा, जब ये दूध पिएगा तो मैं इसे बताऊंगी कि खुदा कितना मेहरबान है। जब मेरे पास खेलेगा, जब ये मेरे पास नहाने आएगा, जब मैं इसके कपड़े बदलूंगी तो मैं इसको बताऊंगी कि यहोवा ने मेरी दुआओं को सुना और तुझे दिया। मैं इसको बताऊंगी कि समूएल मुझसे ज्यादा तेरे लिए खुदा है। जब मैं तुझे खुदा के पास छोड़ने जाऊंगी तो तू वापस नहीं आएगा, तू खुदा की फरमा बरदारी में रहेगा। समूएल तुझे एली काहिन के पास रहना है। 7 साल तक हन्ना ने अपने बच्चे को ट्रेन किया। हम कितनी माया जो अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हैं यीशु के साथ रहने के लिए। हम कितनी माया जो अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हैं कि जब वो यीशु को कबूल करे तो वापस ना आए, वो उसके साथ आगे बढ़ते जाए, वो उसकी फरमा बरदारी में जाते जाए। हन्ना की तरह हम कितनी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को जब दूध पिलाती हैं तो उनके कान में यीशु की मोहब्बत का इकरार करती हैं। हम कितनी माए हैं जो अपने बच्चों को जब वो हमारे साथ बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो हम उनको सिखाएं कि यीशु कितना अजीम है, उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। टिया को हम अपने बच्चों के खास एज में सवाल और जवाब भी सिखाते हैं। और टिया को सबसे पहला सवाल और जवाब मैंने सिखाया वो ये था कि टिया हमारा मुनज्जी कौन है? तो वो कहती है यीशु। वो क्या कहती है? मैं से पूछती हूँ टिया ये सलीब का मतलब क्या है? वो कहती है सलीब का मतलब है यीशु मेरे लिए मरा है। तो मैं से पूछती हूँ कि यीशु तुम्हारे लिए मरा, इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं कि यीशु ने मुझे गुनाहों से आजाद किया, यीशु ने मुझे मॉन्स्टर से आजाद किया, यीशु ने मुझे इब्लीस से आजाद किया है। मुझे पता है आज ये अल्फाज सिर्फ उसके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन आज उसके मुंह से निकलेंगे तो कल उसके दिल से भी निकलेंगे। वो दिल से जानेगी कि
यीशु मेरे लिए क्या है। आज से माँ अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें। अन्ना ने पहले 7 साल में जो सैमुअल को सिखा दिया वही सैमुअल ने किया। वो सैमुअल एली का फरमाबरदार रहा और वो अजीम खादम बना। मूसा से लेकर दाऊद तक के लोगों में सबसे बेहतरीन मर्द दुआ सैमुअल था। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसकी माँ ने उसको ट्रेन किया। हमारी मुआशरे की कमबख्ती ये है, हम नहीं जानते कि माएँ क्या कर सकती, ना मुआशरा जानता है, ना माएँ जानती हैं, ना उनके साथ रहने वाले बाप जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तालीमात की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस अजीम माँ बनने के लिए क्या असूल बताती है। बाइबल मुकद्दस कैसे मुझे बताती है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। पौलुस इसको जब तीमुथियुस को खत लिखते हैं तो कहते हैं कि वो ईमान जो तेरी नानी लुइस के पास था और फिर तेरी माँ यूनिके के पास था, वही ईमान मैंने तुझ में देखा। इसका मतलब है ईमान माँ से भी ट्रांसफर होता है, सिर्फ बाप से ट्रांसफर नहीं होता। जब लुइस अपनी बेटी यूनिके को गोद में खिलाती होगी, उसको कपड़े पहनाते बातें करती होगी, उसे बताती होगी कि यीशु ने हमारे लिए बड़ा काम किया, यीशु हमसे मोहब्बत करता है। जब यूनिके का बेटा तीमुथियुस पैदा हुआ तो उसने उसे बताया होगा कि तीमुथियुस यीशु हमारे लिए सबसे अहम है, वो हमसे बड़ा प्यार करता है। मैंने शुरू में कहा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा असर पैदा करने वाली शख्सियत कौन सी है? माँ है। और उसको ने कहा तो मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। उसने बाप का नहीं कहा, उसने कहा मुझे क्या दो? पढ़ी लिखी माएँ दो, क्योंकि पढ़ने लिखने की तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो किसकी गोद में है? वो माँ की गोद में। माँ सिखाती है अपने बच्चे को, जैसे लुइस ने यूनिके को, यूनिके ने तीमुथियुस को सिखाया। आप तारीफ उठा के देख लें, बड़े से बड़े खातमीन को देख लें, जब अपनी माँ के बारे में बात करते हैं तो आप जानेंगे कि किस कदर खुदा ने उनकी जिंदगी में बड़े काम किए उनकी माँ के जरिए से। इब्राहिम लिंकन कहते हैं मैं आज जो कुछ भी और जो कुछ मुस्तकबिल में बन सकूंगा वो मैं अपनी माँ की वजह से। मैं किसकी वजह से हूँ? अपनी माँ को। ये कोई खातमीन कभी जज्बाती बात नहीं करते, ये मैं आपको वाज़ेह करूँगा। खातमीन प्रैक्टिकल बात करते हैं। यकीनन इब्राहिम लिंकन की जिंदगी में उसकी माँ का कोई किरदार होगा तो उसने कहा। उसके बाद जॉर्ज बुश अमेरिका के सदर रह चुके हैं। जब वो अपनी शख्सी गवाही शेयर करते हैं, अपने निजात के सफर का जिक्र करते हैं, तो वो बताते हैं मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से ज्यादा खुदापरस्त औरत नहीं कभी देखी। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से ज्यादा खुदापरस्त औरत नहीं देखी। आप सोचें और तसव्वुर करें कि जॉर्ज बुश की माँ कैसे खुदापरस्त है कि उसने कभी ऐसा खुदापरस्त देखा ही नहीं। उसके बाद आप ऑगस्टीन एक बहुत बड़े थियोलॉजियन है, वो कहते हैं मैं एक भटका हुआ लड़का था, मैंने यीशु से बड़ी भागने की कोशिश की, खुदा से भागने की कोशिश की, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे भागने नहीं दिया, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे भागने नहीं दिया। जॉन और चार्ल्स वेस्ले, उनकी मदर का नाम सुजैना था, उन्होंने उनको बड़ी तालीम दी, यीशु मसीह के बारे में सिखाया। और जब वो बड़े हुए तो अजीम लीडर बने और मेथोडिस्ट चर्च की उन्होंने बुनियाद रखी। तो अगर कोई पूछे कि मेथोडिस्ट चर्च का बानी कौन है तो शायद गूगल से पढ़ के सारे कहें कि जॉन वेस्ले और चार्ल्स वेस्ले। तो सही जवाब क्या है? सुजैना उस चर्च की बुनियाद रखने वाली, क्योंकि सुजैना ने उन दोनों को छोटी उम्र में यीशु से मुतारिफ करवाया। मेथोडिस्ट चर्च की इस रिफॉर्मेशन की बुनियाद रखने वाली कौन है? सुजैना है। बिली ग्राहम 19वीं सदी के अजीम खादिम हैं, जिन्होंने पता नहीं करोड़ों जिंदगियों को बचाया, करोड़ों जिंदगियों को यीशु मसीह के करीब लाया। और वो कहते हैं कि मेरी माँ, मैंने जो बाइबल पढ़ने की आदत मुझे पड़ी वो मेरी माँ से, क्योंकि मेरी माँ मुझे गोद में लेकर बाइबल पढ़ा है। और मुझे जब मैं बाइबल ना पढ़ता तो मुझे खोखलापन लगता। आज हम जितनी माएँ यहाँ पर और जितनी बच्चियाँ हैं जो आने वाले मुस्तकबिल में जो माएँ बनेंगी, उन सब के लिए जरूरी है कि वो दुआ हो। सबसे पहले वो अपनी जिंदगी में एक तरजीह रखें, और वो तरजीह क्या है कि खुदा को पहला दर्जा दें, फिर वो दुआ को, फिर वो अपनी जिंदगी में बेहतर मकसद रखें, फिर वो मुस्तकिल मिजाज हो, और आखिरी क्या है कि वो कायल करने की आदत, वो अपने बच्चों को कायल कर सकें कि खुदा रहीम है, वो अपने बच्चों को कायल कर सकें। कौन जानता है कि हमारे गुड लाइफ चर्च में से खुदा किसको एक और बिली ग्राहम देगा? कौन जानता है कि हमारे इस गुड लाइफ चर्च में से खुदा किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को डीएल मोडी देगा? कौन जानता है कि खुदा किसी
अजीम माई बनने के लिए? हाथ खड़े करें। जितनी बहनें तैयार हैं कि वो एक अजीम माई बने, तो आज से इन 5 असूलों को अपनी जिंदगी करें। ये 5 असूल इस बात के जामिन है कि आप अजीम माई बन सकते हैं। खुदावंद आज के पाक कलाम के सिला सबको बन सिस्टर आपका कलाम सुना रही थी, तो शायद पीछे वालों को तो नहीं नजर आ रहा होगा, मैं चूंकि सामने था तो ऑलमोस्ट बहनों की तो आंखें नम थी, भाई भी इधर कुछ रो रहे थे। इसका मतलब है कि आज का कलाम इस कदर बरकत और हमारी जिंदगी में अमली तौर पर था। इस कलाम के